Hello. It's been a few weeks, months. So I wanted to make a very, I I wanted to make a few videos going forward. So, but every time I try to make a video, I make sure that it is some kind of it's always some informative video, something about spirituality, something about humanity, something about the rights and the wrongdoings, things I believe in, and things I, uh, you know, find worth sharing. So this is going to be a same kind of video, and maybe if I post more videos after this, all of them are going to be kind of the kind of videos where there are stories you can take away a lot of things from, things that are informative, things that are good for us to inculcate in our day-to-day lives. Yeah, sort of like that. So the kind of person I am, every time someone asks me a question, my first instinct is, do I know the answer to that question? If yes, I love sharing thoughts and, you know, as much as I know about that topic, I love sharing it with that person. However, there are times when someone asks me something and I am not sure what to answer. As a person, I go into a different zone when there is something that I don't know about, when there is something I don't know the right answer to. And it brings me up into a place where I start thinking about it a lot and start, trying to understand what is or what could be the right answer to something. Retrospect करने लगती हूँ. There are few people in my life who tend to look towards me when it comes to something about spirituality, something about relationships, be it any kind of relationship. रिश्ते हो गए. I'm not preaching that I'm someone who's very informative, मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूँ or something like that, because I am not. I only know what I have seen, I only know what I have read and what I have learned. My sister, she quite often asks me things about Shivji. Similarly, I think last week one of my friend ended up asking a question. So this was, what is the right way to love someone? So that was the question. So I just wanted to share something in regards to this question, but also share it in a way that एक स्पिरिचुअल लेवल पे, या फिर हमने अपने शास्त्रों में, अपने वेद में जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो लिखा हुआ है, जो कहानियां सुनी है, उससे हमें अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो उसके थ्रू मैं आंसर करना चाहूँगी. तो आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस एंड देन there's a small bit that I wanted to share about this. तो देर एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, अच्युतम केशवम, हम सबने सुना होगा. तो उसमें एक बहुत ही अच्छी सी लाइन है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. तो इसमें जो ये लाइन है, दिस इज अबाउट शबरी. नाउ शबरी और श्री राम जी की कहानी आई एम श्योर हम सबने सुनी होगी, बट the answer to that question that I was asked lies in this story actually, when you see it that way. Yeah. So Shabri was a woman who used to live in the jungle, and वो श्री राम जी को बहुत प्यार करती थी और उनसे मिलने की चाहत रखती थी हमेशा. और तो एक दिन राम जी उनसे मिलने आए, एंड तो शबरी के पास उनको ऑफर करने के लिए कुछ था नहीं, ऐसे पकवान या फिर
बहुत बड़ा कुछ ऐसा था नहीं। तो शबरी ने पेड़ से बहुत सारे बेर के फल जो होते हैं, बेर के फल तोड़े और उन्होंने राम जी को वो ऑफर करना चाहा। तो अब श्री राम जी भगवान जो होते हैं उनको, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे बहुत बड़ी फीस्ट या बहुत पकवान या सोने चांदी ऐसा कुछ ऑफर करो। आप सच्चे मन से जो ऑफर करो वो खुशी खुशी लेते हैं। तो शबरी ने जब बेर तोड़े तो वो राम जी उनसे लेने लग गए। तो शबरी क्योंकि प्रभु के सामने बैठे हुए हैं और इतना प्यार है मन में प्रभु के लिए, तो शबरी ने सोचा कि बेर तो मैंने तोड़ लिए, अब ये बेर खट्टे भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि कोई फल सड़ा गला हो। तो शबरी ने हर एक बेर को टेस्ट किया थोड़ा थोड़ा और उसके बाद जो मीठे बेर थे उसको अलग करा और जो खट्टे बेर थे उनको अलग करा। जो मीठे बेर थे वो उन्होंने श्री राम जी को ऑफर किया। तो काफी सारे लोग सोचते थे कि आप अपना जूठा प्रभु को कैसे ऑफर कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर कहानी से हमें ये समझ में आता है कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, रिश्ते में प्यार हो, तो सबसे बड़ी चीज होती है एफर्ट, द एफर्ट ऑफ टेस्टिंग ईच बेर एंड देन गिविंग इट टू, अर्पित करना प्रभु को। तो पहली चीज वो है, बिकॉज पेड़ से तोड़ के कोई भी ऑफर कर सकता है, बट एक एक बेर को टेस्ट करना और ये मेक श्योर करना कि मीठे फल ही खाएं प्रभु, तो वो अलग एफर्ट है। दूसरी जो इस कहानी से हमें जो दूसरी चीज हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि जैसे कि मैंने बोला अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट वे टू लव समवन, देयर इज नो बुक डेफिनेशन ऑफ loving someone in a certain way. We all love people in different ways. We all are loved by people in different ways. But when you offer, अर्पित जब हम किसी को करते हैं, जब हम अपना प्यार किसी को देते हैं, तो उस प्यार में जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम क्या देते हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ये जो शबरी और श्री राम जी की कहानी थी, इससे हमें ये समझ में आता है कि देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। एक पूरी थाली है बेर की, विच इज द व्हेन वी लव समवन, और या फिर जब हम किसी से हमारी दोस्ती हुई, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी से हमारी शादी हुई, तो देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, बहुत सारी बैगेजेस हैं। बट अगर हम शबरी की तरह उनमें से जो नेगेटिविटी, ट्रॉमा, बैगेज, पुराने जख्म, एंगर, कोई भी बुरी चीज वो हटाकर सिर्फ अच्छी चीजें हम अर्पित करें, ऑफर करें, तो वो सबसे अच्छी चीज होती है, किसी को देना, किसी को अर्पित करना प्यार में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I've been wanting to come up with small stories that we can inculcate in today's day and age. So yeah, maybe I'll do that in the next video. So thank you whoever watched.